Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की और साथ ही बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी। और हमारे साथ खबरों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट पुनीत जैन उपस्थित हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में। धन्यवाद हर्ष। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Absolutely, the headlines first. Domestic benchmark indices slumped for fifth consecutive day. Sensex sheds 984 points and Nifty settles below 23,600. India's renewable energy capacity surges by 13.5% to 203 gigawatts since October 2023. Government committed to encourage talent and provide support to those in gaming, animation and entertainment sectors, says Information and Broadcasting Secretary Sanjay Jaju. And crude oil prices inch up today, Brent crude trading at $72.16. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार पांचवें सत्र में गिरावट। सेंसेक्स 984 अंक गिरा तो निफ्टी 23,600 के नीचे पहुंचा। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 13.5% की वृद्धि 203 गीगावाट तक पहुंची। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि सरकार एनिमेशन, गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध। और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $72.16 पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार पांचवें सत्र में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 984 अंक गिरा और 77,691 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 324 अंक की गिरावट रही और यह 23,559 पर रहा। दिन के कारोबार के समय बाजार ने भारी उतार चढ़ाव देखा। बीएसई मिड कैप में 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप में तो 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। विस्तृत रिपोर्ट के साथ वैभव। Domestic benchmark indices Nifty and Sensex deepened their slump today, marking their fifth consecutive day of loss. Both indices recorded their steepest drops in 5 months in early trade, with a broad-based sectoral sell-off amplifying the slide. At close, Sensex was down 984 points or 1.25% at 77,691 and the Nifty dipped 324 points or 1.36% at 23,559. The broader market at the Bombay Stock Exchange followed the downward trend as mid-cap slid over 2.5% while small-cap indices lost more than 3%. In the Sensex index, 27 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Tata Steel and Mahindra tumbled over 3% each, while Adani Ports shed 2.83%. Conversely, among top gainers, NTPC increased 0.21%, Tata Motors rose 0.18%, and Infosys gained 0.02%. In sectoral indices at the BSE, all sectors ended the trade in negative territory. In the top laggards, industrials declined 2.95%, commodities dropped 2.45%, and services shed over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,299 companies declined and 670 advanced while 98 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 16 companies hit their 52-week high while 168 hit their 52-week low. और रुपए की भी बात कर लें। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपये 38 पैसे दर्ज की गई।
विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 106 पर दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, क्या रहा आज का शेयर मार्केट। लगातार 5th सेशन था जबकि मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। कहाँ 1 लाख पहुंचने की सेंसेक्स की बात हो रही थी, अब लग रहा है कि 75,000 तक पहुंच रहे हैं। जिन बड़े कारणों की बात करें पुनीत, अगर तो सबसे बड़ा कारण एक तो मानते हैं कि FIIs का विड्रॉल रहा है, दूसरा जो वैल्यूएशन है बहुत कंफर्टेबल लेवल पे नहीं थे, ये भी बात रही है। साथ ही चाइना फैक्टर भी है, जहां FIIs जा रहे हैं, जिस तरीके से इम्पिटस चाइना गवर्नमेंट ने दिया है। वेस्ट एशिया का क्राइसिस भी हो सकता है। आपकी नज़र में, एक्सपर्ट की नज़र में, चूंकि आप लगातार रोज मार्केट देखते हैं, अभी मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में है और कहां तक जाएगा? तो हर्ष, आपने बाजारों का हाल तो बयान कर ही दिया है कि बहुत आज जो बाजारों में गिरावट थी और पिछले कई सेशन से वो गिरावट बरकरार है। और ख़ास तौर से आज मैं देख रहा था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक्स हैं, इंडेक्स भी काफ़ी गिरे, 2.5 से 3% गिरे। और जो शेयर्स थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की है, वहाँ पर हमने आज काफ़ी गिरावट देखी। तो डेफिनेटली बाज़ारों के अंदर एक काफ़ी अब चिंताएं बनी हुई हैं। और जो निवेशक हैं उनको थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मार्केट में कम हो रहा है। मुख्य कारणों की बात करें तो डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत बड़े स्केल पर सेलिंग रही है, ये रिकॉर्ड स्केल है। हमने इससे ज़्यादा भारी सेलिंग बाय इंस्टीट्यूशंस FIIs हमने नहीं देखी अपने पिछले कई वर्षों में। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बड़ा कारण है। हालांकि उसके कारण देखिए ग्लोबल हैं, इंडियन फैक्टर्स हो सकते हैं। इंडियन फैक्टर्स में जो सबसे मेन कारण है वो वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन थी, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल हमारा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात करें हम, तो करीब सितंबर एंड में जो भारत के जो मुख्य शेयर्स थे, जो इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, उसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जो वैल्यूएशन का एक काफ़ी अच्छा आंकड़ा, एक मीट्रिक है, पी रेशो। तो पी रेशो जो था वो करीब भारत में 29 का था और चाइना में उस समय प्राइस अर्निंग मल्टीपल 9 का था। पी मल्टीपल जो था वो 9 का था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, जो भारत, जिनके पास ऑप्शंस हैं, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भारतीय शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हाई थी। दूसरा, उनको बहुत प्रॉफिट आ रहा था। जो पिछले 3 या 4 वर्षों में निवेश किया था वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे मार्केट्स में या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाने की चॉइस ली। तो डेफिनेटली ये, और अभी ये देखिए ओवरनाइट ये चिंताएं जाने वाली नहीं है। मुझे लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, हालांकि वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर वो ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है वो भी रहेगी, बनी रहेगी। वो पैसा शिफ्ट, आपने कहा पैसा शिफ्ट कर रहे हैं चाइना में, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पैसा वो अमेरिका में भी गया है। जैसे डॉलर इंडेक्स की आपने बात करी, डॉलर इंडेक्स करीब जब US इलेक्शन से पहले की बात है, तो वहां पर ये डॉलर इंडेक्स करीब 100 के स्तर पर पहुंच गया, 106 तक पहुंच गया। और अब 106, यानी 6% अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तो कई सारे कारण हैं मिला जुलाकर। लेकिन मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भारत की, इंडिया स्टोरी पर हम ध्यान दें तो बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है। लेकिन गलतियां कहाँ कर सकता है निवेशक? पहली गलती वो ये कर सकता है कि एक्सपेक्टेशन में कि जी बाजार आपको बहुत जल्दी वो पैसा देगा। एक आप हायर रिस्क जो शेयर्स हैं, जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, या वहाँ या लीवरेज कर लिया आपने, तो इस तरह का रिस्क आपको अपने पोर्टफोलियो में कम रखना है। तो अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टाइप के जो बहुत रिस्की बेट्स हैं उसमें नहीं करना है, अनलेस कि आप एक्सपर्ट हो या आप कोई स्पेकुलेटिव काम ना करें, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमाने की आप इच्छा ना रखें। तो मुझे लगता है कि अगर ये कुछ चीज़ें, यानी आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आप यहाँ थोड़ा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, शायद 1 या 1.5 साल, तो आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छा पैसा बना के निकल सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर हम चाहें कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कोई रिकवर कर लें लॉस अपने इस लालच में, कई बार क्या होता है, आपको लॉस हो रहा होता है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप लालच में कोई और ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। या जबरदस्ती एवरेज पे एवरेज किए जाते हैं, बिल्कुल, जबकि वो शेयर प्राइस नीचे जा रहा होता है, तो आपका नुकसान भी बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एवरेजिंग एक तरीका है जो एक्सपोजर बढ़ा देती है और आपको मालूम नहीं वो कहाँ रुकेगा, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कोई, अनलेस कि आप इसको सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं नीचे वैल्यूएशन पे, वो वैलिड है।
लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक शेयर 100 रुपए वाला मुझे आज 60 में मिल रहा है तो मैं वो वैल्यू वहां पर उसका वैल्यूएशन अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं है। इमोशनल कनेक्ट से शेयरों के साथ इस तरीके से बाहर निकलना होगा। पुनीत, आपने बात की पी रेशियो की, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो एफआईआईज भी हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी देखते हैं कि पी रेशियो क्या है। थोड़ा सा अपने श्रोताओं की समझ के लिए अभी हम पीई पर थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेंगे। प्राइस अर्निंग, शेयर की जो प्राइस है और शेयर की जो अर्निंग है, इसे आम श्रोताओं के लिए कैसे समझाएंगे? तो देखिए, जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जैसे जो भी क्या अवेलेबल है आज प्राइस वाली 100 रुपए का कोई शेयर चल रहा है जी। और अगर उस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर, यानी जो उसका नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यानी पर शेयर, क्योंकि आप एक शेयर खरीद रहे हैं 100 रुपए का, तो आपको ये देखना कि उस एक शेयर की कितना वो शेयर के सामने प्रॉफिट कमाती है कंपनी, है ना, वो अर्निंग्स, उसको अर्निंग्स पर शेयर कहते हैं हम। ये तो निकालेंगे कैसे? अगर आप प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो वो हो गया प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी अर्निंग्स पर शेयर, तो उसको हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल कहते हैं। तो अब मान लीजिए आपका शेयर 100 रुपए का चल रहा है और आपकी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो लेट अस से 3 रुपए की है, तो 100 रुपया डिवाइडेड बाय 3 करीब 33 हो गया, यानी आपके प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 33 हो गया आपका। अब आपको एक ही तरह की दो कंपनियां हैं और एक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल पीई रेशो, जैसे पी रेशो भी कहते हैं, पी रेशो मान लीजिए 30 की है और दूसरी कंपनी की पी रेशो 20 की है, तो आप ये वो तो मार्केट प्राइस से डिसाइड हो रहा है ये, तो आप ये कह सकते हैं कि जो 30 रुपए वाला जो शेयर है थोड़ा महंगा मिल रहा है मुझे, या उसकी वैल्यूएशन मुझे ज्यादा लग रही है, और जो 20 वाला है, तो इस तरह से हम एक अनुमान लगाते हैं कि कोई शेयर हमें राइट। आप देखिए बाजार में आप जाते हैं और एक कमीज भी खरीदते हैं तो उस कमीज की कीमत लगाते हैं, आप ऐसा नहीं करते कि जी बिना कोई अंदाजा लगाए उसको उस जो भी कीमत पे मिल रही है वो कमीज लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर सामान जो अपने जीवन में खरीदते हैं उसकी एक अनुमान लगाते हैं कि उसकी वर्थ क्या है और उस वर्थ के बेसिस पे लेते हैं। इसी तरह से हमें शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है। और यही सब्जियों के साथ भी होता है। जब टमाटर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो हम कम खरीदारी करते हैं, जरूरत के हिसाब से ही लेते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि टमाटर की कीमत शायद 30, 40, 50 रुपए ही उसकी कीमत है, 100 या 150 रुपए नहीं है। अभी निफ्टी 50 की जो पी था वो शायद 22.7 के आसपास था, और कुछ कंपनियों के जो शेयर की प्राइसिंग थी वो कहीं उससे ज्यादा थी। तो क्या पी रेशियो कम होना बेहतर है या पी रेशियो ज्यादा होना? देखिए, पी रेशियो अगर कम है तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज हमें रिलेटिवली सस्ती मिल रही है, तो कम पी रेशियो पर इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात है, और हाई पी रेशियो पर इन्वेस्ट करना नॉर्मली वो समझदारी की बात नहीं है। हम हाई पी रेशो पर इन्वेस्ट करते हैं कभी कभी, पर तब जब कंपनीज को बहुत हाई ग्रोथ रेट हो, जब हमें लगता है वो कंपनी बहुत हाई ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगी, तब हम हाई पी मल्टीपल दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यानी उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो पी रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर बहुत हाई पी मल्टीपल पे नॉर्मली शेयर लेने में मुझे आई विल बी कॉशियस। बिल्कुल। और बीच में जब हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में खूब लोगों को फायदा हो रहा था, लगातार लोग मार्केट में घुस रहे थे, लाखों लोगों ने यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोले पिछले 3-4 वर्षों में इंडिया में, और खूब बाजार में पैसे लगाए। हालांकि बाजार को एक उससे सपोर्ट भी मिला है जब एफआईआईज निकलते हैं जो हमारे डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अब जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप भी एक तरीके से बहुत तेजी से गिरा है, बड़ी गिरावट हुई है, एक तरीके से कई लोगों के फोन आए, कई लोगों ने मेल भेजे, पैनिकी की स्थिति है, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए हर्ष, पहली तो बात है कि बाजार में निवेश करते समय पैनिक या यूफोरिया दोनों चीजों से लड़ना है। अगर आप यूफोरिया में यानी लालच से शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप गलती करेंगे, पैनिक में शेयर बेच रहे हैं तो गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। यानी हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना है और ये देख के इन्वेस्ट करना है कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या रिस्क है। अगर आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं, बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा लोगों को, खास तौर से इस वक्त ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि पहली बात ये देखिए कि आपके पास जो कंपनी के निवेश करे हुए हैं वो कैसे, वो आपने निवेश कितनी अच्छी कंपनियों का है। वो अगर आपके अच्छी कंपनी है तो आप पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए, यानी मैंने सारा पैसा लगा दिया मान लीजिए बाजार में और अब बाजार गिरते ही मुझे पैनिक हो रहा है, वो भी गलत है। थोड़ा लिक्विडिटी आपके हाथ में होनी चाहिए क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये
कुछ चीज़ें यानी रिस्क मैनेजमेंट, जिसे हम वैसे फॉर्मली कहते हैं, रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और सिर्फ घरेलू शेयर बाजारों में ही नहीं वैभव, बल्कि दुनिया के शेयर बाजारों की बात करें तो वहाँ आज गिरावट रही है। एक्सेप्शन के तौर पे कुछ मार्केट्स बढ़े हैं, लेकिन जहाँ गिरावट रही है वो भारी गिरावट रही है। एशियाई बाजारों का ही हाल देख लें। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 2.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। जापान का निकेई सूचकांक 1.5% से अधिक गिरा है। हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.2% की गिरावट ही रही है। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की बढ़ोतरी रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.24% बढ़ा ही है। यानी एक तरीके से कहें मिला जुला रुख है एशियन मार्केट में, मेजर एशियन मार्केट्स जो हैं। लेकिन जो गिरावट जिन मार्केट्स में है वहां बड़ी गिरावट है, इस पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय बाजार अभी खुले हुए हैं। डैक्स मजबूती पर टिका हुआ है, लेकिन फ्रांस के कैक 40 में मामूली गिरावट चल रही है और लंदन का FTSE 100 भी लगभग सपाट बना हुआ है। आपके पास यूएस मार्केट का हाल है। यूएस बाजार जो हैं वो आज कैसे रहे उन पर हम बात कर लेते हैं। Well, Harsh, US stocks were muted yesterday as investors were awaiting the key economic data such as inflation and retail sales due later this week. The Dow Jones Industrial Average rose 0.24%, the S&P 500 gained 0.1%, and the Nasdaq Composite gained 0.05%. तो ग्लोबल मार्केट पे पुनीत आपकी क्या राय है? देखिए, एशियाई बाजार जो गिरे हैं, जापान गिरा है और कोरियन मार्केट गिरा है, ये क्या करेक्टिव मेजर्स हैं या वहाँ भी एफआईआईज का खेल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जैसे वैभव ने कहा कि यूएस मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल फर्क था। जो एशिया मार्केट्स में आपने बताया कि मार्केट गिरी थी, पर वैभव ने बताया कि हमें अमेरिका में गेन्स थे और ये गेन्स आ रहे हैं पिछले रिकॉर्ड स्तर पर। तो S&P 500 को देखते हैं, अगर हम डाउ जोन्स को देखते हैं, नैस्डैक को देखते हैं, तो करीब करीब सभी इंडिसेस में तो जो अमेरिकी बाजार हैं ये बिल्कुल विश्व के दूसरे बाजारों से अलग चल रहे हैं। और नेचुरली ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, करीब करीब $50 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है वहाँ पर। तो वो बहुत बड़ी एक मार्केट है। उसको वो ये देखने वाली बात है कि वो इंजन पूरी दुनिया के बाजारों को अपने साथ लेके आगे बढ़ पाएगा, अभी मुश्किल लगता है। पर मुझे लगता है कि ये अगला 2 महीने, जब तक अमेरिका में नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन होती है और नई एक सरकार एक शेप लेती है, तब तक शायद जो अभी स्टेप्स ले रहे हैं वहाँ पर, उसमें काफ़ी उम्मीद है, होप में यूएस मार्केट चल रही है। पर डेफिनेटली नया साल जो अगला वर्ष होगा, 2025 का वर्ष होगा, वो एक नया इतिहास जरूर लिखेगा अमेरिकन मार्केट्स के लिए। Sir, what you both have been discussing for the past few minutes, I would say that these things are a great learning for the investors, especially the beginner investors who have seen the past 3-4 years as the basic parameters, and they think that what has been happening over the past 3, 4, 5 or 7 years is what the markets usually produce. What are the lessons that you would say are there in the current scenario for the new investors or for the retail investors who thought that extraordinary results are the new normal that can be always achieved, but somehow the markets which are red in everywhere, it's not just India but world over. Now, what are the lessons for them? So, Vaibhav, your question is very relevant to, in fact, Harsh mentioned that a lot of new demat accounts have been opened, a lot of new people have come to the markets. So, approximately 14 crore new investors have entered the market in last 3 years. From 3 crore demat accounts 3-4 years back, we are now at 17-18 crore accounts. And almost 10 to 20 lakh new accounts are opened every month. So, clearly, Indians at a very large scale are now participating in the markets directly, and therefore it is important to understand that the markets will give returns which are only normative. See, you cannot have superlative returns every year, year after year. So last 3 years have been phenomenal. People have doubled, maybe tripled, maybe increased the money by 3-4 times. But that is not the norm. That doesn't happen, that it will keep on happening. In fact, the expectation should be very, very conservative at this stage. We do have very good prospects going forward. I'm sure Indian economy will continue to do well. We will be the world's top economy in a sense, in the top 3-4 economies. Investors will make a lot of money. But I think this is a time to take a step back, to take a breath, to consolidate gains, maybe even book profits where you're getting very good profits, and to prepare for the long haul.
See, I would say that this is a marathon. This is not a sprint that so once in a while you get an opportunity to make quick money. But I think the investors must learn to prepare for the long haul. That is the key lesson. There are other things, of course, but this is the key lesson. Expectations should be moderated for the next couple of years. You should be prepared to and the quality of portfolio should be very good. I would underline this fact. Quality of portfolio must be very good. Companies must be very good, which are in your portfolio. They will do well. So it would be better for the investors, especially the new or the beginner investors, to keep invested in the market rather than to panic, or as you said, that never invest while in panic or in euphoria. So panic definitely should be avoided. There is no need to panic, and I think they should continue to invest judiciously. So, and again, like I said, don't go overboard. They should not go overboard. They should understand what kind of money they need to invest in the long term. It is not as if I put everything into one basket and then I suddenly panic. So let's not lose the liquidity, basically, and invest for the longer term. So moving on from these wonderful discussions to our headline stories, India's renewable energy sector has achieved significant growth from October last year to October this year. According to the latest data by the Ministry of New and Renewable Energy, India's total renewable energy installed capacity increased by 13.5%, a staggering 24.2 gigawatts in a year, reaching 203.18 gigawatts in October this year from 178.98 gigawatt in October 2023. The significant rise aligns with India's ambitious targets in the field of renewable energy. Puneet sir, what about this sector of renewable energy wherein the government is highly committed to not just cut the carbon emissions but also give this particular industry an impetus, because it's not just good for the economy but also for the environment that we live in? How do you see this sector growing, as we've just seen the report that it has grown by 13.5% in just a year? So, Vaibhav, in fact, this centerpiece of India's energy policy has been the push for the renewable energy. A few years back, it was very good to talk about renewable energy, but nobody was investing in it. So nobody seemed to really put real money behind it. Only thing is they talked about it. It was nice, but I think going forward, India will emerge as one of the main areas or main countries where renewable energy will play a major role. We of course have very large energy needs, and we are trying to replace that with renewable energy. So I think, and particularly I would like to highlight here the fact that government policies, whether PLI related, they've given a lot of push to manufacturing equipment for renewable energy projects. So I think government policies have been very, very supportive, and we are seeing the results. And moving over to another story of ours, in a path-breaking move set to revolutionize urban transportation, Dubai has inked agreements at the World Government Summit 2024 to launch the world's first air taxi service. The agreements pave the way for Dubai to pioneer the deployment of a city-wide electric aerial taxi service and vertiport network. At the heart of the initiative lies the Joby Aviation S4, an innovative aircraft designed to comfortably accommodate 4 passengers along with the pilot. Supporting 6 propellers and powered by 4 battery packs, this S4 boasts a maximum range of 161 kilometers and a top speed of 321 kilometers per hour. सोने की कीमतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोने को भी लोग एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं. सोने में आज 0.76% की बढ़ोतरी हुई है. माफ कीजिएगा, 0.28% की बढ़ोतरी हुई है और 10 ग्राम सोने की कीमत 75,420 रुपये रही है. और चांदी की कीमत भी बढ़ी है, 0.76% बढ़ी है. 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 90,280 रुपये देने पड़े. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य भी बढ़ा है 0.35% और 75,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का जो वायदा मूल्य था 0.83% की बढ़ोतरी के साथ 90,066 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. क्रूड की क्या स्थिति है? So oil prices inched up today. Brent crude was trading 0.38% up at $72.16 per barrel, and WTI crude gained 0.47% to trade at $68.44 per barrel when reports last came in. बिल्कुल, क्रूड और हमने सोने की भी बात कर ली और थोड़ी देर पहले हम ग्लोबल मार्केट की चर्चा कर रहे थे. आपने बहुत बेहतरीन एक चीज कही कि यूएस बहुत बड़ा बाजार है, $50 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट हो रहा है कैपिटलाइजेशन, और वो जो इंजन है पूरी दुनिया के रेल के डब्बों को साथ ले चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा. नई सरकार बनने वाली है, ट्रंप चुन लिए गए हैं
राष्ट्रपति। एक सवाल था पुनीत ये कि ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो उन्होंने ओपनली कही है, खास करके H1B वीजा को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, इसका मतलब है कि अगर इसे सख्ती से लागू किया गया या जितना उन्होंने कहा है अपने चुनाव प्रचार के दौरान, उसका 50% भी लागू अगर किया जाता है इन पॉलिसीज को, तो जाहिर सी बात है कि जो लाखों लोग वहाँ आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंडियंस बहुत सारे हैं, उनकी वहाँ से वापसी रवानगी हो सकती है। तो ऐसे में क्या मार्केट पे असर पड़ेगा और खास करके नैस्डैक पर असर पड़ेगा? देखिए हर्ष, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जो आईटी कंपनीज ने गाइडेंस दी है इस चिंता को लेकर, उन्होंने कहा है कि देखिए हमारी अब जो डिपेंडेंस है वो H1B पे काफी कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये शायद इतना बड़ा मुद्दा ना बने। डेफिनेटली नेगेटिव फैक्टर होगा, पर मुझे लगता है कि इसका उतना असर नहीं पड़ेगा और हमारे शायद ग्रोथ जो है, अब हम जो इंडिया के जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे ऑयल इंपोर्ट से एक्सीड करते हैं। $250 बिलियन का हम आईटी एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो एक बहुत बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है ये। मुझे लगता है ये इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत पे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या अमेरिकी बाजारों पर इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए मुझे अमेरिकी बाजारों के लिए हम ये माने कि वो भारतीय दम पर चलते हैं तो शायद ठीक नहीं होगा। हमारा वहां पर योगदान बहुत है, लेकिन वो हमारे दम पर शायद उतना नहीं चलते। बिल्कुल। And I would say in this little discussion that I think all the policies that Trump has talked about, or the people that he's about to elect for the cabinet, are all pro-India. So let's be not in a negative sense, but keep a positive outlook for the fact that what will be the next cabinet will obviously be pro-India. Moving over to our next story, the Ministry of Information Broadcasting Secretary Sanjay Jaju today said the government is committed to encouraging talent and providing support to those in the gaming, animation and entertainment sectors. He said that the government has set up the Indian Institute of Creative Technologies, IICT, as a national centre of excellence in this direction. Addressing a press conference on the sidelines of the India Game Developer Conference, IGDC, on its opening day in Hyderabad, he said the institute will operate under a public-private partnership model with 52% stake held by FICCI and CII and 48% by the Government of India. Moving over to the next story, Nepal prices of large cardamom are increasing as global demand for spice surges. Currently, the market price of large cardamom is Nepalese rupee 2,500 per kg Nepal. It is a high-value cash crop in eastern Nepal. Nepal is the largest producer of large cardamom, accounting for 68% of the global production, followed by India and Bhutan. Large cardamom is used extensively in South Asian cuisine, non-veg delicacies and masala tea. अभी हम मार्केट को देख रहे हैं, इंडियन मार्केट्स की खास तौर पर बात करें, लगातार गिर रहा है और सोने की कीमतें जो हैं हमने देखा कि बीच बीच में बढ़ रही हैं। हालांकि अपने पीक से तो अभी भी नीचे हैं, 75,420 रुपये के भाव पर चल रही हैं। इस वक्त आमतौर पर जब शेयर मार्केट गिरता है सोने में एक उछाल आता है, लेकिन इस बार हम उतना उछाल नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो अपने पीक को क्रॉस कर जाना चाहिए था। एक तो ये क्यों है, और दूसरा इसी से मिला जुला सवाल है कि क्या सोने में इन्वेस्टमेंट चाहे ETF के थ्रू हो या बॉन्ड के थ्रू हो सही है? तो हर्ष, सोने की कीमतें ज़्यादातर वैसे स्टॉक मार्केट से कम रिलेटेड होती हैं। डॉलर इंडेक्स से उसका काफ़ी सीधा असर होता है, और जैसे डॉलर इंडेक्स 106 पर आया ट्रंप के विक्ट्री के बाद, तो हमने देखा कि सोने में भारी गिरावट आई। $2,800 पर आउंस की कीमत थी, और वहाँ से इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन वो अब 2650, यानी करीब करीब 6% गोल्ड में कीमती कम हुई है। और जितना डॉलर इंडेक्स बढ़ा है उतना ही सिल्वर में तो 10% ज़्यादा गिरावट हुई है। तो क्लियरली डॉलर से रिलेटेड है ये, और जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वहां पर डॉलर का क्या रुख रहेगा आने वाले जनवरी में, उसके बाद ही हम सोने की कीमतों पर कोई निर्णय कर पाएंगे। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही, समय खत्म हो रहा है, प्रोग्राम भी खत्म करना पड़ेगा। पुनीत जैन, आप आए स्टूडियो में, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर इंग्लिश में। Domestic benchmark indices slumped for fifth consecutive day. Sensex sheds 984 points and Nifty settles below 23,600. India's renewable energy capacity surges by 13.5% to 203 gigawatts since October 2023. Government committed to encourage talent and provide support to those in the gaming, animation and entertainment sectors, says Information and Broadcasting Secretary Sanjay Jaju. And crude oil prices inch up today. Brent crude trading at $72.16. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. नमस्कार। Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.